ਹੁਣ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਕਲ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਤ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਤ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਜੀਵਣਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਤ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਹੱਸਣਾ ਤੇ ਰੋਣਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਤ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਜੀਵਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਤ ਨਾਲ। ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 10ਵੀਂ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ, ਆਤਮਦਰਸ਼ੀ, ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਈ ਅਬਰੇ ਰਹਿਮਤ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ 10ਵੀਂ ਜੋਤ ਹਨ। ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ, ਵਿਚਾਰਕ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਸੰਤ, ਮਹਾਬਲੀ, ਇਤਨੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ਤਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਅਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਕਰੇ ਜੀ ਮੇਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੋ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਕਹਿ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਸਾਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਪਟਨਾ ਪਾਟਲੀ ਪੁੱਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਔਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਆਪ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਪਟਨੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪ ਦੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤੇ ਸੰਤ ਤੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਲੱਛਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਅੰਬਾਲਾ ਜਿਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅੰਬਾਵਾਲਾ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਭੀਖਨ ਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਪੂਰਬ ਦੀ ਤਰਫ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ। ਖਲੀਫੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੀਰ ਸਾਈਂ ਅੱਜ ਕਿਧਰੇ ਭੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੀ ਲਈ, ਅੱਜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦੀ ਤਰਫ ਸਜਦਾ ਪਏ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਅੱਜ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੂਰ, ਅੱਜ ਖੁਦਾਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੂਰਬ ਦੀ ਤਰਫ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਦ ਜਾ ਕੇ ਪਟਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਸਤਕ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ। ਬਾਲ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੋ ਮੁੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਫਕੀਰ, ਇਹ ਜੋ ਨੂਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਘਰ ਚਾਨਣਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਘਰ ਚਾਨਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮੁੱਠੀਆਂ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪੀਰ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕ ਗਿਆ। ਪੀਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ, ਇਹ ਮਹਾਬਲੀ ਯੋਧਾ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਦੇ ਇਹ ਮਹਾਵਾਕ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਕੋ ਰਾਫਜ਼ੀ ਇਮਾਮ ਸਾਫੀ, ਮਾਨਕ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਦ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਘਟਨਾ ਘਟੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਕੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਿਧਰੇ ਇੱਕ ਗੁਆਚ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਲਾਲ ਜੀ ਕੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਹੀਰੇ ਤੇ ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੜਤ ਜੋ ਕੰਗਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੋਨੇ ਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੂਸਰਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਕੋਈ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਕੰਚਨ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਨਾਲ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀਆਂ ਵੈਰਾਗੀ ਤੇ ਤਿਆਗੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇੰਜ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈਆਂ। ਦੁਖਤ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜਾ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਜਿਸ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਪਟਨਾ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਸੁੱਟੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤੱਟ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕੀ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ 2000 ਸਾਲ ਤੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਫਗਾਨੀ ਆਏ, ਈਰਾਨੀ ਆਏ, ਡੱਚ ਆਏ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਆਏ, ਮੰਗੋਲ ਆਏ, ਅਰਬੀਅਨ ਆਏ, ਫਿਰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਆਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ। ਸਭ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਤਨਾ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ
अहिंसा परमो धर्म है, इस विचारधारा ने इतना कायर बना दिता कि सदियां दी गुलामी दी लपेट विच ये देश जकड़िया गया। साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहन लगे, अहिंसा भी सूरबीर नूं ही शोभा देंदी है, कायर नूं नहीं, बुज़दिल नूं नहीं। अहिंसा धर्म का एक निक्का जिहा अंग जरूर है, संपूर्ण धर्म नहीं है, मुकम्मल धर्म नहीं है। इस वास्ते साडे देश के पुराने योधे अवतारी पुरुष भी शस्त्रधारी सन। जैसे श्री राम धनुष बाण धारण करते ने, श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र धारण करते ने, अर्जुन दे हथ विच धनुष बाण है, परशुराम दे कोल बरछा है, शिवजी दे पास त्रिशूल है और गधा है, हनुमान कोल गरज के इस तरह के जितने अवतारी पुरुष ने कोई ना कोई शस्त्र अपने कोल रखते हैं। और इस गल का प्रतीक है कि हिफाजत बाहरों भी करनी है, हिफाजत अंदरों भी करनी है। अंदर दे वैरी कोई होर ने, बाहर दे वैरी कोई होर ने, ते संघर्ष दोहां नाल करना पएगा। अपनी आत्मा नूं भी बचाना है, अपने शरीर नूं भी बचाना है, अपने मन नूं भी बचाना है, पर अपनी धन संपदा नूं भी बचाना है, अपने देश नूं भी बचाना है, अपने देश की संस्कृति नूं भी बचाना है। देश प्यार की लहर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने इस ढंग नाल भारत वासियों के अंदर फूकी और आख्या, देश की आजादी लई और देश की संस्कृति नूं कायम रखण लई योधे चाहिए ने, महाबली चाहिए ने, जो सिर नूं हथेली ते रखन। हकीकत है, सच्चाई है। आनंदपुर साहब विच विसाखी वाले दिन आपने सिरां दी मंग की थी। जो सिर भेंट करना नहीं जानता वो अपने सिर की हिफाजत भी नहीं कर सकेगा। जो सिर भेंट करना जानते ने वो संस्कृति का सिर, देश का सिर, देश के धर्म का सिर उच्चा रखते हैं। पर जो सिर निछावर करना नहीं जानते वो देश का सिर नीवा करा छड़ते हैं। देश की संस्कृति नूं मलिया मेट करन विच ही अगाह होंदे ने। तो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज महाबली इस तरह के सूरमे सन। अज तक दुनिया भर के आलम कहते आए ने कि लड़ाई का कारण जर, जमीन ते जोरू है। पर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की जीवनी का वर्खा पढ़िए तो आप दियां जंगां दा कारण ना जर है, ना जमीन है, ना जोरू है, और दुनिया का वाहिद ये पहला महापुरुष है जिसने दुनिया के आलमां की इस गल नूं झटला के रख दिता है कि सिर्फ जर की खातर ही जंग नहीं होंदे, सिर्फ जोरू की खातर ही जंग नहीं होंदे, और सिर्फ जमीन की खातर ही लड़ाई नहीं होंदी, बल्कि मजलूमां की रखिया रही, दीना की रखिया रही, देश की रखिया रही, संस्कृति की रखिया रही तलवार चुकनी पैंदी है। वैर विरोधी हिरदे नाल लड़ना होर गल है, निर्वैर जज्बे नाल लड़ना होर गल है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने भावें हाथ में तलवार चुक ली है, पर अंदर हिरदा निर्वैर है। और निर्वैर होने का एक बहुत बड़ा सबूत मैदान जंग सिंह सूरमे जिन्होंने मार मार के गिरा देंदे ने, भाई कन्हैया उन्होंने ही जल पिला के खड़ा करता है, पकड़ के मुश्कां बन के भाई कन्हैये दियां गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के हजूर पेश किए गए। आख्या गया, महाराज ये साडे विच गद्दार है, असीं जिन्हां वैरियां नूं मार के गिरांदे हां ये उन्होंने ही पानी पिला के फिर सुरजीत कर देंदा है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने भाई कन्हैये तो पूछा, क्यों भाई कन्हैया ये तेरे ते की इल्जाम लांदे ने, तू वैरियां नूं पानी पिलाना है? महाराज मैं ते किसी वैरी नूं पानी नहीं पिलाया, मैं ते आप नूं जल छकाना, मैं ते जिस मुंह नूं देखना आप दा ही मुखड़ा प्रतीत होंदा है। गलवकड़ी च ले लिया। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपने कोलों मरम डब्बी भी दिती, आख्या लै जख्मां ते मरम पट्टी भी कर लिया कर। इस तरह का कोई निर्वैर मनुख ही जगत दे इस तरह के वैरियां नाल पेश आ सकता है। निर्वैर हिरदा साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का इस तरह है जिवें एक डॉक्टर
ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਨਸ਼ਤਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਛੁਰਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਕੂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵੈਰ ਭਾਵ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਛੁਰਾ ਉਹ ਨਸ਼ਤਰ ਦੇ ਚੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਯਾਤ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਛੁਰਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਛੁਰਾ ਕਾਤਲ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਚ ਵੀ ਹੈ। ਕਾਤਲ ਛੁਰੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮੌਤ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਛੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੁਰਾ ਚਲਾਇਆ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਮਰੀਜ਼ ਮਰ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, तो कत्ल का मुकदमा नहीं दर्ज होगा क्योंकि उसका इरादा ही नहीं सी। कातिल ने किसी ने छुरा मारिया लेकिन अगला नहीं मरिया तां भी इरादा कत्ल का मुकदमा उस ते चलेगा क्योंकि उसका इरादा सी मारन का। तो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का जो इरादा है वो तो एक जर्राह का इरादा है, डॉक्टर का इरादा है फालतू मवाद नूं कढ़ दईए। जैसे बांह विच बहुत मवाद भर जाए या पैर विच तो डॉक्टर कहता है समुचे जिसम नूं बचाउण दी खातर ये पैर कटना पेगा, ये बांह कटनी पैनी। कई दफा समुचे देश ते देश की संस्कृति नूं बचाउण दी खातर कुछ एक नूं एक पासे करना पैंदा है, तां देश बचदा है, तां देश की संस्कृति बचदी है। ये कालम दा कहना है कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के अनेका रूप ने। जब मैं देखदा वो मैदान में जंग विच लड़ रहे हैं तो एक सिपाही प्रतीत होंदे ने, योद्धा प्रतीत होंदे ने, पर जब पौंटा साहब दे हथ विच कलम लेके कुछ लिख रहे हैं ते कलम विचों नगमे निकल रहे हैं, कविता निकल रही है, तां आप एक कवि प्रतीत होंदे ने, शायर प्रतीत होंदे ने। जब उन्होंने सोने के सिंघासन पर बैठा देखीदा, चौड़ हो रही है, नजराने भेंट हो रहे हैं, लोग सजदे विच ने, तां इंज प्रतीत होंदा है जैसे एक शहनशाह सिंघासन पर बैठा है। पर जब पंजां प्यारियां दे अगों हाथ जोड़ के गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज खड़े ने ते अमृत दी दात मंगदे ने, उदों भिखारी प्रतीत होंदे ने। अज तक जिन्ने दरवेश होए ने वो बादशाह नहीं होए और जो बादशाह होए ने वो दरवेश नहीं होए। जब किसी बादशाह नूं दरवेश बनन दा शौक जागया है उन्हें बादशाहत नूं लत मारी है। भरतरी ने, राजा गोपी चंद ने ते इस पद्धर दे होर महापुरुषां ने राज सिंघासन नूं लत मार के संतपना कबूल किया, योगी बने, सिद्ध बने, संत बने, दरवेश बने। ते जब कभी किसी दरवेश के अंदर संत दे अंदर राजा बनन दा शौक पैदा होया तो उन्हें संतगिरी छड़ दी, उन्हें दरवेशी छड़ दी। दुनिया विच एक वाहिद मुकम्मल इंसान आया, पूर्ण पुरख आया जिन्हें दरवेशी की खातर बादशाहत नहीं छड़ी और जिन्हें बादशाहत की खातर दरवेशी नहीं छड़ी। तदी ते भाई साहब भाई नंद लाल नूं कहना पिया, हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह बादशाह दरवेश। गुरु गोबिंद सिंह, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बादशाह भी ने, दरवेश भी ने। आप दियां अनेकां महान रचनावां ने। दसम ग्रंथ की रचना आपने पौंटा साहब विच कीती, जिहदे विच जाप साहब, अकाल उस्तत, बचित्र नाटक, चंडी दीवार, भगवती दीवार, ज्ञान प्रबोध, कृष्णा अवतार, रामा अवतार, वर्ष के 24 अवतारां की कथा, ये महान रचना गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जिन्होंने जगत की झोली विच पाई है। साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज एक अद्विती शायर ने, कलम दे धनी ने, महान लिखारी ने और उस आपने साफ ये भी कर दिता है कि बहुत कुछ मैं अनुवाद किया है। दसम कथा भागवत की भाखा करी बनाए, और बासना ना है प्रभ धर्म युद्ध के जाए। मैं पुरातन धर्म ग्रंथों की भाषा की है, टीका किया है,
तर्जमा कीता है। क्यों तर्जमा कीता है? ताकि जगत नूं पता चल जाए देश का पुराना धार्मिक इतिहास की है, देश का पुराना धार्मिक ढांचा की है, ते असी जगत नूं की दे रहे हैं, असी जगत की झोली दे की पा रहे हैं। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के बारे भाई साहब भाई संतोख सिंह जी के ख्याल ने कि इस तरह की महान मूर्ति अगर आलमे वजूद दे च ना आंदी ते अज देश विच की होना सी। छाए जाती एकता अनेकता बिलाए जाती, ओवत कुचीलता कतेबन कुरान की, पाप ही परपक जाते धर्म धसक जाते बरन गरक जाते, सहत विधान की देवी देव देहुरे संतोख संग दूर होते, रीत मिट जाती कथा भेदन पुराण की, श्री गुरु गोबिंद सिंह पावन परम सूर, मूर्त न होती जो कह करुणा निधान की। ऐसी बख्शिश भरी मूर्ति जे ना होती ते देश की यह हालत अज नहीं होनी सी। भाव ये जो संस्कृति बची हुई है देश की, ये गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का सदका, उन्होंने रहमत का सदका, उन्होंने बख्शिश का सदका। आप दा आगमन भाई साहब भाई नंद लाल दे लफ्जां च बहार दा आगमन है। मौसमे बहार दा आगमन, बाहोश बाश के हंगाम नौ बहार आमद। साडे देश दियां 6 ऋतुआं विचों बहार दी रुत ऋतुआं दा राजा है, सिरमौर है, महान है। क्यों? मौसमे बहार विच गर्मी इतनी जितनी सहन हो सके, ते ठंड भी इतनी है जितनी के बर्दाश्त हो सके। फुल खिड़दे ने मौसमे बहार विच, बहुती गर्मी होवे ते गर्मी नाल फुल झुलस जांदे ने, पर जो बहुती ठंड होवे, कक्कर पै रहा होवे, पाला पै रहा होवे, तां फुल मुरझा जांदे ने, नहीं पैदा होंदे। तो गल स्पष्ट है कि बर्फ पै रही है, फुल नहीं पैदा होंगे, लू चल रही है, फुल झुलस जाएंगे। फुल्लां नूं खेड़े लई, फुल्लां दी उत्पत्ति लई मौसमे बहार चाहिए है। जो बहुत गर्म है वो जालिम हो जाएगा, जो बहुत ठंडा है वो बुज़दिल हो जाएगा। देश के जो संघर्ष सी वो इस तरह का सी कि एक पासे एक जालिम सी, बहुत गर्म सी, बहुत गर्म सी, दूसरे पासे एक बुज़दिल सी, बहुत ठंडा सी, बहुत ठंडा सी। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जिस खालसे नूं जन्म दिता, आखिया तुसी बहार दी तरह होना है, ना इतना गर्म कि जने खणे दी पग लाओ, ना इतने ठंडे कि जना खना थोड़ी पग ला छटे। मौसमे बहार बाहोश बाश के हंगाम में नौ बहार आमद, बहार आमद यार आमद करार आमद। भाई साहब भाई नंद लाल कहते ने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की आमद मौसमे बहार की आमद है। आपने देशवासियों नवी सेध दी और आख्या जब मजबूर हो जाओ, लाचार हो जाओ, तो शस्त्र चुकना भी धर्म है। चूंकारज हमा हील तेदर व्यस्त, हलालस्त बुर्दम बशमशीर दस्त। जब वक्त के सताधारियों ने आप यह आख्या कि आप संत हो, गुरु हो, फकीर हो, फकीर का शस्त्रधारी होना ठीक नहीं, तो आपने फरमान किया बलाचारगी दरमिया आमदम, बतदबीरो तीरो तुफंग आमदम। मैं लाचार होके शस्त्र चुके है, बंदूक चुकी है, मजबूर होया। ऐ सताधारियो थोड़े ते ज्ञान दा, विचार दा, शांति दा, खिमा दा असर नहीं पिया, मैनू मजबूरन शस्त्र चुकना पिया। तो ये वाक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे अमर वाक ने चूंकार हवा हिल तेदर गुयस्त, हलालस्त बुर्दम बशमशीर दस्त। साडे देश दे एक प्रसिद्ध कवि का कहना है, ऐ मां जे तू बच्चे नूं जन्म देना है वो सूरमा होवे, जे सूरमा नहीं तो भगत होवे, जे भगत नहीं तो कम से कम दानी ता जरूर होवे। जननी जने ता भगत जन, कै दाता कै सूर, नहीं ता जननी बांझ रहे, काहे गवावे नूर।
ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਐ ਮਾਂ ਅਗਰ ਤੂੰ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ, दाता नहीं पैदा कर सकती, सूरमा नहीं पैदा कर सकती, तो फिर तेरा बांझ रहना ही बेहतर है। वाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, ऐसा पूर्ण पुरख जो दाता भी है, भगत भी है, सूरमा भी है। सूरमा ऐसा कि लखां दी फौज का घेरा पिया होए, हौसला पस्त नहीं होता, हौसले नाल आप लड़ते हैं। इन्ने महान महाबली, और आपने ही ऐसा कह देता, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तब है गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। तो 1.25 लाख नाल लड़न लई दरअसल जिगरा चाहिए, हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए। आप भगत इतने महान ने कि मैदान जंग दे भी जे अमृत वेला हो गया है तो समाधि ला के बैठ गए ने, आसा दीवार नूं सुन रहे ने, मगन हो के प्रभु दे गीत गा रहे ने। इस तरह दे आप भगत ने। दानी दानियां दे ते आप नूं कहा जांदा है सरबंस दानी, जो कुछ भी है दान कर दिता इस देश में, जो कुछ भी सी दान कर दिता जगत दे मजलूमां नूं, जगत दे यतीमां नूं, जगत दे दुखियां नूं धन दान कर दिता, अन्न दान कर दिता, भूषण दान कर दिते, महल माड़ियां दान कर दित्तियां, अपने सिंह दान कर दिते, अपने पुत्र दान कर दिते, अपना परिवार दान कर दिता और अपना आप भी निछावर कर दिता। सरबंस दानी, अन्न दे दानी ते धन दे दानी दुनिया दे बहुत सारे मिलणगे, पर सरबंस दानी तां केवल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने, जिन्होंने इस देश के उत्तों सब कुछ निछावर कर दिता, सब कुछ कुर्बान कर दिता। लाला दौलत राय कहते हैं कि जब मैं रामायण की जंग का अध्ययन करदा ते उत्थे कारण ने 2 इस्त्रियां सीता ते सरूपनखा, सरूपनखा दी नख लक्ष्मण ने कट दिती, बदले की भावना दे रावण सीता नूं चुक के लै गया। बहुत वड्डा संघर्ष होया। धार्मिक तौर ते राम ते रावण दा कोई भेद नहीं है, मतभेद नहीं है। 4 वेदां दा पाठी रावण है, सियाणा है। 4 वेदां दे पाठी श्री राम जी ने। राम रामेश्वरम दे शिव जी की पूजा करते हैं, रावण भी शिव जी का ही उपासक है, शिव जी की ही उपासना करता है। तो धार्मिक तौर पर कोई मतभेद नहीं। दूसरी अजीम जंग हुई महाभारत की, लाला दौलत राय कहते हैं उत्थे भी कारण है एक स्त्री, और वो स्त्री है द्रौपदी। द्रौपदी की रचना तो दुर्योधन लई ये शब्द निकले, ये अंधे दा अंधा है। धरतराष्ट्र उन्हां दा पिता अंधा सी, ये अंधे दा अंधा है। ये कौड़े बचन दुर्योधन नूं ऐसे चुभे, बदले की भावना पैदा हुई, लिहाजा पांडवां नूं जुए लई प्रेरिया। तो धर्म पुत्र युधिष्ठिर अज जुआ खेडन लगे। हैरानगी, वो जुए दे च धन हारदे ने, फिर वस्त्र हारदे ने, भूषण हारदे ने, महल हार जांदे ने, फिर राज पाठ हार जांदे ने। इतना वड्डा जुआरी फिर पत्नी हार जांदा है, फिर वो द्रौपदी नूं हार जांदे ने। फिर ये अगांह चल के बहुत वड्डे संघर्ष का कारण बनी, महाभारत के युद्ध का कारण बनी। लाला दौलत राय कहते हैं स्वाने उमरी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे महाबली, जो आपकी लिखत एक बड़ी सुंदर किताब है, उहदे च आप कहते हैं कि ये जिहड़ियां 2 अजीम महान जंगां पुराने समय साडे देश दे होईयां, कारण स्त्री है ते धार्मिक तौर पे कोई मतभेद नहीं है। ते दोवें पासे राजे ने, एक पासे सेना दे मुखी ने द्वारका दे राजा, एक पासे दुर्योधन आप ने इंद्रप्रस्थ दे राजा मुखी सिरमौर। धार्मिक तौर पे कोई मतभेद नहीं। पांडव पढ़े ने द्रोणाचार्य कोल, कौरव भी पढ़े ने द्रोणाचार्य कोल। धर्म एक है, धार्मिक तौर पे कोई मतभेद नहीं। दोवें राजे ने। तो जंग का कारण है एक स्त्री, और वो स्त्री है द्रौपदी। लाला दौलत राय कहते हैं जब मैं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दीयां लड़ाइयां का अध्ययन करदा,
ਉਸ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਆਪ ਦਾ ਮਤਭੇਦ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਆਪ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਵੀ ਜੋ ਅਨੇਕਾਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜ਼ਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ੋਰੂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਮਤ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਔਰ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਉਠਾਈ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਮਤ ਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਟਕੇ ਟਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੀ ਸੀ। ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਮਧੁਰ ਵਾਕ ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਤੁਲਸੀ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਅਨਜ ਬਧੂ ਭਗਨੀ ਸੁਤ ਨਾਰੀ ਹੇ ਸਠ ਇਹ ਕੰਨਿਆ ਸਮਚਾਰੀ। ਜਦ ਪੇੜਾਂ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਛੁਪ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੇ ਬਾਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਘੋਰ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, तो राम कहने नहीं मैं पाप नहीं कीता तैनू मार के। इन्हें छोटे भरा दी स्त्री तारा ने जबरन अपने कोल रख लिया सी। तो श्री राम दे ए बोल जिन्हों कलम बंद करते ने श्री तुलसी अनज बधू भगनी सुत नारी हे सठ ये कन्या समचारी ताहे कुदृष्ट बिलोके जोई ताहे बधे कछ पाप न होई। अनज बधू छोटे भरा दी स्त्री भगनी भैन सुत नारी नू ते चौथी कन्या, इन्हां चारां नूं ही कन्या दे समान समझना चाहिए ते जिहड़ा कुदृष्टि नाल वेखे उस नूं मैं बद कर दियां, कोई पाप नहीं, कोई पाप नहीं। ये श्री राम दे बोल ते जद देश दी असमत टके टके दे गजनी दे बाजारां च विकदी सी, मजबूरन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं तलवार चुकनी पई देश दी असमत नूं बचाउण लई, देश दी गैरत नूं बचाउण लई। सरबंस दान करके देश दी गैरत संस्कृति धर्म नूं बचा के आप हजूर साहब दे श्री सचखंड दे ज्योति जोत समा गए। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नूं आपने रस्मी गद्दी दिती, तिलक दिता, केसर दा परिक्रमा कीती, नारियल अगों रख के मत्था टेक के कह दिता ऐ खालसो आइंदा तो शरीरक रूप दे गुरु होवेगा पंथ, अध्यात्मक रूप दे गुरु होवेगा ग्रंथ। तो गुरु ग्रंथ ते गुरु पंथ दी प्रथा इस तरीके नाल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज राज करके ज्योति जोत समा गए श्री हजूर साहब दे।